خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون اینڈ انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر جاوید احمد وانی صاحب، ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی کشمیر۔ ناظرین، اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں ریگارڈنگ چانسز یا ریگارڈنگ پوٹینشیل ان نیشنل فیشن ٹیکنالوجی، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جاوید صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں آپ کا۔ شکریہ منظور صاحب۔ سر، یہ جو NIFT ہے کشمیر کا، کب سے یہ ہے کشمیر میں؟ منظور صاحب، جیسے ہمارے کنٹری میں IITs ہیں، NITs ہیں، IIMs ہیں، ویسے ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی ہے جی۔ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ادارہ ہے، منسٹری آف ٹیکسٹائلز کے انڈر، اور آل اوور کنٹری ہمارے 18 کیمپسز ہیں یا 18 NIFTs ہیں جی۔ اور ایک یہاں پہ جس کو ہم NIFT سری نگر کے نام سے جانتے ہیں، یہاں پہ کشمیر میں ہے۔ 2016 سے اس کیمپس کی شروعات ہوئی، ایک ٹیمپرری کیمپس یہاں رنگریٹ میں تھا، وہاں سے شروعات ہوئی جی۔ اور 2022 لاسٹ ایئر ہم نے اس کو پرماننٹ کیمپس جو ہے اوم پورہ بڈگام میں جی وہاں ہے، وہاں شفٹ کیا، اور لاسٹ ایئر سے ہم لوگ پرماننٹ کیمپس جو ہے وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ وہیں سے جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہیں پہ ہے۔ پرائمرلی ایک ہائر ایجوکیشن کا ایک ادارہ ہے جی، جہاں سے ہم بیچلرز ڈگری، ماسٹرز ڈگری یا ڈاکٹریٹ، اور وہ بھی مخصوص ہے ہمارا ایک ایریا وچ از ٹیکسٹائل، اور اس میں بھی پھر آپ ڈیزائننگ میں فیشن ڈیزائننگ ہے یا کافی سارے کورسز ہیں جو ہم لوگ کورسز پہ تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ سر، یہ بتائیے کہ یہ جو فیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ جو اس کی اسکوپ کیا ہے کشمیر میں، کیونکہ یہ ایک نیا کمپلیٹلی نیا سبجیکٹ ہے۔ نہیں، بالکل نیا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر انجینئرنگ کے لیے جاتے ہیں یا انجینئرنگ کے بارے میں، میڈیکل کے بارے میں، بالکل۔ تو یہ جو فیشن ٹیکنالوجی کا ہے یہ شاید نیا ہے، اس بارے میں شاید زیادہ جانکاری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل، یہ ایکچولی جو ہمارا فوکس ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف ہے، تو جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں جو بھی ایک ٹرین اسکل جو ہیومن ریسورس لگتا ہے، جی۔ فیشن ٹیکنالوجی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی ایک مین ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے انڈیا میں جو اس سیکٹر کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر پر سے ایگریکلچر کے بعد انڈیا میں ٹیکسٹائل سیکٹر ایک بڑا ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ میکسیمم جاب جنریشنز ہیں، جہاں پہ امپلائمنٹ کے جو نمبر ہے وہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ ٹیکسٹائل میں ہے۔ جی جی۔ اور اس میں جو ہمارے جو جاب رولز ہیں یا جو پوزیشنز ہیں جو ہمارے گریجویٹز جہاں جوائن کر لیتے ہیں ڈفرینٹ ہے، مطلب آپ فیشن ڈیزائن، وہ تو کچھ اسٹیٹس ہے جیسے گجرات ہے ٹیکسٹائلز میں، گجرات ہے، بٹ سی جو فیشن انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، واسٹ ہے۔ آپ اگر براڈر ٹرم میں لے لیں جو ہمارے ہینڈی کرافٹ ہے، دے آر آلسو پارٹ آف دا ٹیکسٹائل سیکٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو فیشن ٹیکنالوجی ہے، اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ٹیکسٹائل یا گارمنٹس کے علاوہ جو ڈیزائننگ ہے جس میں آپ کا فرنیچر ڈیزائننگ بھی آتا ہے، جیولری ڈیزائن بھی آتا ہے، لیدر ڈیزائننگ کے الگ ایک کورسز ہمارے پاس ہے، براڈر ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے کورسز ہیں۔ ان کورسز کے بعد جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ڈفرینٹ جاب پوزیشنز پہ انڈسٹری کو جوائن کرتے ہیں، ایز اے فیشن ڈیزائنر جوائن کر سکتے ہیں، ایز اے جو ریٹیل مرچنڈائزر ہے ایز اس کو جوائن کر سکتے ہیں، فیشن فورکاسٹر، مطلب ایک ویسا ایک کائنڈ آف اے سائنس یا ایک ایسا جاب رول جس میں ایک ڈیزائنر بتائے کہ 5 سال 2 سال کے بعد کون سا ٹرینڈ کلر میں ہوگا، پیٹرن میں ہوگا، ڈیزائن میں ہوگا، یہ انڈسٹری کو ایک فورکاسٹ دے دیتے ہیں، وچ وی کالڈ ایز کائنڈ آف فیشن فورکاسٹر۔ ویب ڈیزائنر اگین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو انڈسٹریز ہیں اب ایک آن لائن ریٹیل اسپیس کی طرف جا رہے ہیں، آن لائن اسپیس کی طرف جہاں بائنگ اور سیلنگ دونوں چیزیں آن لائن موڈ میں ہو رہی ہیں۔ اب کسی کو مان لیجیے ایک ٹیکسٹائل کا بڑا ایک انڈسٹریل سیکٹر ہے جس کو وہ آن لائن پورٹل کریٹ کرنا ہے، تو آئی ایم شیور کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں جن کو بالکل اسی ویسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ آپ کو ایک پورا ویب ڈیزائننگ کر سکتے ہیں آپ کی آن لائن ریٹیل پورٹل کی، وچ ول بی ایکسکلوزولی ڈیلنگ ود فیشن پروڈکٹس۔ جی، فیشن کا جہاں تک فیبرک کا یا ٹیکسٹائل کی بات آپ نے کی، ایک آدمی جو پیدا ہوتا ہے تو ننگا پیدا ہوتا ہے، بچہ جو اس کے بعد تو اس کے بدن پہ کپڑے آتے ہیں جتنی دیر وہ دنیا میں رہتا ہے، بالکل، تو ٹیکسٹائل تو اتنا ضروری ہے ہر آدمی کے لیے، ہر ملک میں، ہر جگہ پہ۔ یہ بیسک جو بیسک ہیومن نیڈز ہے جو ایسے
روٹی کپڑا اور مکان, this is one of them. Food, shelter and clothing. That is one of them. But fashion کا جو scope ہے, it is much beyond garments, جیسے میں نے عرض کیا اس سے پہلے. آپ جب ڈیزائنر کی بات آتی ہے تو ایک فرنیچر ڈیزائنر بھی اس میں آتا ہے. اس میں آپ کا جو جیولری ڈیزائن, لیدر ڈیزائن, یا پھر آج کی آن لائن ریٹیل سپیس میں جب ہم بات کرتے ہیں ویب ڈیزائنر آتا ہے, تو کافی سارے رولز ہیں. تو کورسز پہ آتے ہیں, کورسز کیا کیا آفر کرتے ہیں آپ؟ کافی اچھی ڈائیورسٹی ہے کورسز کی. ہمارے پاس جو نفٹ میں ایک آئیڈیل ایک باسکٹ جس کو ہم بولتے ہیں کورسز کی, وہ 10 ہیں, اراؤنڈ 10 آف دم. اور جیسے کالر جڑے ہمارے ساتھ. بالکل. ہلو 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 جی سر, میرا کوشچن تھا فیشن ڈیزائننگ میں کورس جو ہے وہ بات کرنا تھا جاوید سر سے. جی اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب, کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جاوید صاحب نمسکار سر. جی 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 آداب سر. مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ فیشن ڈیزائننگ میں سرٹیفکیٹ کا کورس ہوتا ہے یا ڈپلوما یا ڈگری کا, وہ کتنے سال کا کورس ہوتا ہے؟ اور سیکنڈری ایک کوشچن ہے سر کہ یہ اس کا کیمپس سلیکشن اور اس کا فیوچر کیسا ہے؟ اور اتنا میرے کوشچن کا جواب دے دیجیے گا تو ہم کو لگتا ہے کہ بہت سارے شروتا دیش بھر میں لوگوں کا جو سمسیا جو ہے کوشچن سالو ہو جائے گا. اور سیکنڈری کی جاڑے کے موسم میں کون سے کپڑا کا چوز کرنا چاہیے؟ بالکل کپڑا جو ہے وہ بھی ہے وہ فیشن کے لحاظ سے نہیں, ہیئر کے لحاظ سے بھی پہنا جاتا ہے. تو جاڑے کے جنرلی موسم میں ہم لوگ یہاں بہار میں 6 سے 7 ڈگری تک نیچے ٹیمپریچر چلا جاتا ہے, تو ایسے میں کھجلی وجلی سب ہونے لگتا ہے. تو کون سے کپڑا پرسکرائب آپ کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر؟ جی تو آئی تھنک ان کے 2 سیگمنٹس ہیں سوال کے. ایک کہ ہمارے یہاں کورسز کون سا ہے, تو وہ کورسز جیسے میں اسی پہ ہم بات کر رہے تھے, ہمارے بیچلرز ہیں, پھر ماسٹرز لیول کے کورس ہیں, پھر ڈاکٹریٹ لیول کے. بیچلرز میں ہم لوگ جو ریگولر 4 سال کا ایک ڈگری ہوتا ہے, جس میں پھر اسپیشلائزیشنز ہیں, فیشن ڈیزائننگ ہے, فیشن کمیونیکیشن ہے. نہیں جیسے این آئی ٹی میں ہے الیکٹرانکس ہے, انجینئرنگ, بالکل, یا دوسری بالکل اسی پیٹرن پہ ہم لوگ جیسے وہ بیچلرز آف انجینئرنگ کہتے ہیں, بی ای یا بی ٹیک, پھر سول انجینئرنگ ہوتا ہے. جی ہمارے یہاں بی ڈیس ہوتا ہے, بیچلرز ان ڈیزائن. اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے فیشن کمیونیکیشن, ایکسیسری ڈیزائن ہے, لیدر ڈیزائن ہے, ٹیکسٹائل ڈیزائن. یہ کورسز الگ الگ یہ الگ الگ کورسز ہیں. بیچلرز ان فیشن ٹیکنالوجی پھر الگ کورسز ہیں ہمارے. نٹ ویئر ڈیزائن ایک الگ ایک 4 سال کی ڈگری صرف نٹ ویئر ڈیزائن پہ ہوتی ہے. اس کے بعد ماسٹرز میں ہم آتے ہیں, ماسٹرز آف فیشن مینجمنٹ ہے, ماسٹرز ان اسپیس ڈیزائن ہے, ماسٹرز ان فیشن ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ ڈاکٹریٹ کے بھی الگ الگ پھر ڈپینڈنگ اس میں ہو جاتے ہیں. ان کا چھوٹا سا ایک سوال تھا کہ ونٹرز میں ہم لوگ موسٹلی ہم لوگ وولن پسند کرتے ہیں. پسند نہیں, یہ ایک موسم کی ریکوائرمنٹ ہے. باڈی میں جو ہیٹ جو الگ ایک ہمارا ایک نظام ہے کہ ہماری باڈی اندر سے ہیٹ جنریٹ کرتی رہتی ہے. جتنا ہم ہیٹ اس میں ریٹین کر پائیں اسکن کے ساتھ تو اتنی وارمتھ رہتی ہے. تو اس میں موسٹلی وول بیسڈ پروڈکٹس ہیں وہ بہتر رہتے ہیں, اور اس سے ایک احساس رہتا ہے گرمی کا, ایک ٹیمپریچر جو ہے باڈی کا مینٹین رہتا ہے. سر کچھ وولز میں کچھ نائلن کا مکسچر آتا ہے آج کل, تو کچھ سکنز کے لیے یہ تھوڑا سا الرجک رہتا ہے. یہ وہ صحیح ہے. سی اب پیور 100% وول میں بھی کچھ لمیٹیشنز ایسی آتی ہیں گارمنٹ میں جس کو ریموو کرنے کے لیے کچھ چیزیں مکس کرنی پڑتی ہے. پولیسٹر یا نائلان مکس کرنا پڑتا ہے, چاہے اس کی اسٹرینگتھ کو امپروو کرنے کے لیے, چاہے اس کا کلر پیٹرن کو تھوڑا وہ ویزیبل بنانے کے لیے, ڈیزائن کو بنانے کے لیے. کبھی کوئی گارمنٹ کی ایسی کنسٹرکشن ہوتی ہے کوٹ کی جس میں آپ نے کچھ مٹیریل مکس کر کے اس کی ٹینسائل اسٹرینگتھ کو امپروو کرنا ہے, وہ چیزیں ہیں. بٹ اگین اٹ ڈیپینڈز, پھر اپنا ہر ایک انسان کو اپنی ایک انڈیویجول ریکوائرمنٹ جو ہے اپنی باڈی کے حساب سے وہ ایک بار سمجھنی ہے, اور اس کے حساب سے پھر اگین اپنے کپڑے اور جو دوسری چیزیں اس حساب سے. اچھا 2024 کے ایڈمیشنز اوپن ہو گئے؟ ابھی نہیں ہوئے, بٹ ہمارا فرسٹ ویک آف دسمبر میں ایک فکس رہتا ہے. تو فرسٹ ویک آف دسمبر میں ہم لوگ ایڈمیشن جو پروسیس ہے اوپن کر لیتے ہیں. کل سے شروع ہو رہا ہے؟ بالکل, فرسٹ ویک آف اٹس اراؤنڈ 4th اور 5th وی مائٹ بی اوپننگ دا ایڈمیشن پروسیس. اور قریب 1 مہینہ جو ہے دسمبر کا جو اپلیکینٹس ہیں جو اپلیکیشنز اپنی سبمٹ کرتے ہیں آن لائن ہے. اور ایک اچھی بیوٹی یہ ہے کہ نفٹ کے جو 18 کیمپسز ہے اس کا ایک کامن ایک ٹیسٹ ہے, کامن ایک اپلیکیشن فارم ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ہی فارم بھرے گا, اپنی چوائس دے دے گا کیمپس کی, اپنی کورس کی چوائس دے دے گا, ایک ہی انٹرنس ٹیسٹ دے دے گا. پھر بیسڈ آن ہز رینک اینڈ پریفرنس آف دا کورس اینڈ پریفرنس آف دا کیمپس پھر اس کے حساب سے اس کی سلیکشن ہوتی ہے. پروسیس فرسٹ ویک آف دسمبر میں اسٹارٹ ہوگا اور اراؤنڈ مئی جون وی کمپلیٹ, سو دیٹ کلاسز جو ہے بالکل
27 को हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं, 27 ऑफ जुलाई उस दिन क्लासेस स्टार्ट हो। सर एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से? सर हिलाल अहमद फ्रॉम सोपोर सर। जी हिलाल साहब फरमाइए, पूछिए सवाल। सर अर्ज बच बेसिकली इंटरेस्टेड टेक्सटाइल सेक्टरस खतर थोड़ा इंफॉर्मेशन रटनस एडमिशन कित पे गसान, फीस वगैरह कोता पता कह स्कोप मज अगर गवर्नमेंट जॉब्स खतर अप्लाई करो तथ खतर क्या स्कोप सर, बे कम कोर्सेस अवेलेबल सर, ये एंट्रेंस फॉर्म कत बनान कत भरन, थोड़ा गस इंफॉर्मेशन। हिलाल साहब एडमिशनस मुतलिक कत कर, मगर बाकी सवाल तम तुम रूजू प्रोग्राम वचान, तमें सर इन्फॉर्मेशन मिलता है इंशाल्लाह। टेक्सटाइल की बात कही उन्होंने, हमारा एक कोर्स ऑलरेडी निफ्ट श्रीनगर में चल रहा है, बैचलर्स इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, 4 साल का प्रोग्राम है वो, और 10+2 के बाद उसकी एलिजिबिलिटी बनती है, 12th के बाद आप उसमें वो कोर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसी हफ्ते फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर वी वुड कम अप विद एडमिशन नोटिफिकेशन। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10+2 फॉर ऑल जो ग्रेजुएट कोर्सेज है उसके लिए 10+2 इन एनी स्ट्रीम। फिर हमारे एक टेस्ट रहते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्ट रहते हैं। आपने कहा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय निफ्ट, और उसकी एलिजिबिलिटी जो है 10+2। इसका मतलब है कि यहाँ के स्टूडेंट का एडमिशन बाहर भी हो सकता है अगर वो उस कैंपस में जाना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, बेंगलोर जाना चाहता है। मैंने कहा मेरिट पे तो नहीं होगा कि? मेरिट पे होता है। अब जो मान लीजिए यहाँ जो स्टूडेंट है, जो यहाँ का कैंपस है, उसके लिए यहाँ 50 या 20 स्टूडेंट्स compete करते हैं जी, तो मोस्टली उनका एडमिशन यही होता है, बिकॉज बाहर से भी, और दो हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट बाहर से, मोर देन 95% स्टूडेंट जो है बाहर के हैं, आउटसाइड J&K के। बट यहाँ के स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट इजीली मिल जाता है। इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख, उनके लिए अलग से एक 35% रिजर्वेशन है जी फॉर द कोर्सेज जो निफ्ट श्रीनगर में है। अच्छा, तो एक अच्छी एक रियायत है, और ये बेसिक इसका मुद्दा ये था या मकसद ये था, जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं, ऑल्दो एक नेशनल लेवल का टेस्ट है, बट हमारे लोकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस कैंपस में प्रेफरेंस मिले और वो उनका एडमिशन रिलेटिवली इजीली हो जाए इस कैंपस में। यानी आपके कैंपस में अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स हैं? हमारे मोस्टली 95% जो है बाहर काफ़ी सारे दूसरे स्टेट्स से हैं जी। कश्मीर या J&K से काफ़ी कम अभी है, बट एक कोशिश है उनका नंबर बढ़ाने की जी। ओवरऑल 35% जो है सीट्स जो है एडमिशन रिजर्व्ड है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। हिलाल साहब थोड़ी देर पहले फोन पे एक सवाल इन्होंने पूछा था, मुझे याद आया कि गवर्नमेंट कोई जॉब प्लेसमेंट इसकी चांसेस हैं? नहीं, हम लोग इसमें तो बिल्कुल क्लियर है मंजूर साहब। जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इसकी जो भी कोर्सेज है, वी डोंट मेक एंड काइंड ऑफ कोर्सेज ऐसे टेलर मेड है, दे आर देयर, इधर आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे या फिर अपना कुछ अपना वेंचर शुरू करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाएंगे, खुद का अपना सेटअप क्रिएट करेंगे, वो है। गवर्नमेंट सेक्टर में देयर कैन बी एन ओपनिंग, हमारी डिग्रीज रिकग्नाइज्ड है, ऐसा कुछ नहीं है जी। जैसे कि हमारे काफी सारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद निफ्ट के वापस निफ्ट को ज्वाइन करते हैं एज अ फैकल्टी PhD करने के बाद, तो दे आर ओपन, डिग्रीज वैलिड है, रिकग्नाइज्ड है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में दे कैन अप्लाई। बट व्हेन वी अप्रोच अ स्टूडेंट, व्हेन द स्टूडेंट कम्स टू, वी टेल देम क्लियरली कि हमारा फोकस है या तो आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे या फिर खुद का अपना बिजनेस सेटअप करोगे। We have a caller. Hello. Hello. हाँ सर। हेलो हेलो जी जी, कौन साहब कहाँ से? हाँ सुंबल शाजीपुरा से सर। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हुसैन। जी हुसैन साहब फरमाइए, पूछिए सवाल। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये मतलब कोर्स हम करेंगे जी, तो इसके मतलब बाद अगर एक इंसान फिर अपना सेटअप खड़ा करना चाहे तो उसके लिए क्या स्कोप है उसका? जी ये सर देखिए, इसमें अगेन जो अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हैं, अपार्ट फ्रॉम जब हम एजुकेशन देते हैं 4 साल की डिग्री 2 साल की डिग्री, नेशनल लेवल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऑलमोस्ट मेजर जितने भी हैं, वी हैव इंक्यूबेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स या बिजनेस एक्सीलरेटर्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो
स्टूडेंट हमारे यहाँ से डिग्री करके निकला है, खुद का सेटअप बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो हम उनको एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देते हैं जिसमें वो अपना बिजनेस सेटअप करेगा, और जब तक उसको वो सेटअप कर लेगा 1 साल 1.5 साल, उसमें उसकी एक मेंटरशिप होती है, उसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ लैब, इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ इवन फाइनेंशियल लिंकेजेस। तो ये सारी चीजें अंडर एक बिजनेस इंक्यूबेटर या जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक अलग से एक वर्टिकल होता है उसके अंडर मिलती हैं। निफ्ट में श्रीनगर कैंपस में, ऑल्दो हमारे 3 कैंपसेस में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में ऑलरेडी एक हमारा ऐसा बिजनेस इंक्यूबेटर चल रहा है, उसका ही एक एक्सटेंशन इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है नेक्स्ट ईयर से हम लोग यहाँ श्रीनगर में उसका एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सो दैट जो जैसे इन्होंने फरमाया कि ये खुद का अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो उनकी जो वो हैंड होल्डिंग आप करते हैं, हाँ, वो हम कैंपस से ही कर लेंगे। जी, आई बिलीव वी हैव अनदर कॉल ऑनलाइन। हेलो आदाब। जी भट्ट साहब फरमाइए। हाँ आदाब जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली फॉर एशियन कंट्रीज for Asian countries, just like the India, Pakistan, or anything, Bangladesh or Arabian countries. This fashion design we are copying the European countries. आप देखिए, the fashion designing and fashioning is only meant for France. आपने देखा होगा फ्रांस में कितनी डिजाइनिंग एंड फैशन है जी, हम वो नहीं कर सकते because our culture does not allow us to do that. Because you can say, आपने बोला रोटी कपड़ा और मकान, textiles are must. In other fields, it is good. But whenever you have to scope for this, for future of this, I think it is a remote in Asian countries. आप देखिए, आज मैंने सऊदी अरबिया में फैशन देखा, वो बुर्के में ही थे, they were doing the same. बुर्के में निकल रहे हैं ऐसे हाथों में, but that is it. This fashion designing we are copying the Asian countries, the European nations. हमारा culture does not allow. अगर हम generation के लिए ठीक degrees, this is must. देते हम इतना ही करेंगे जो हमारा कल्चरली, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, वी विल डू अकॉर्डिंग टू दैट, बट इंटरनेशनल कंपटीशन वी आर नॉट एबल टू compete with those countries, because there you see how these European countries are doing the fashion designing, because they are lucrative, they are very moneyed countries and they are very forward looking. हमारे जो फिर भी अगर स्कोप जो लेडीज होती है या जेंट्स होते हैं, हम जेंट्स तो जा सकते हैं, हमारा कल्चर जो है डिजाइनिंग वो चलता है, मगर फॉर द वुमन वी आर टॉकिंग अबाउट, इंडिया में फॉरवर्ड है, इट इज इन चाइना वेरी फास्ट, इट इज इन जापान वेरी फास्ट, इट इज इन कोरिया, दे आर कम्पीटिंग, बट कल्चरली ऐसे अबाउट द स्कोप, इट इज नॉट फॉर द पाकिस्तानी we people. Industry they can do for the job for industrial, but in competitive world there is no scope. I think myself it is not there is so. चलिए बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। हालांकि ये कह रहे हैं कि शायद स्कोप नहीं है, हम शायद उतने एडवांस नहीं है, लेकिन वी डोंट हैव टू गो द वे फ्रांस गोज। हम तो अपनी लिमिटेशंस अपनी कल्चर के हिसाब से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमने यहाँ रहना है तो हमने यहीं का रहन सहन उसी में रहना है। बट 2 चीजें हैं, एक ये कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी और काफी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, स्टेबल इकोनॉमी मानी जाती है आज की दुनिया में। दूसरा, जो हमारा पॉपुलेशन अभी स्ट्रेंथ है 1.4 बिलियन का, इट इज इन अ वे गवर्नमेंट हैज काइंड ऑफ टेकन अ ट्रांसफॉर्मेशन। जो एक खदशा था कि ये जो ह्यूज पॉपुलेशन है ये हमें नुकसान देगी, इससे हमें काफी सारे खतरे हैं, उसको पॉजिटिव वे में इट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ कंज्यूमर इकोनॉमी जिसमें काफी सारी डिमांड पुल है और जिसको मीट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स है हमारा। एग्जैक्टली, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, एंड देन वी नीड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ दैट ह्यूज जो हमारी पॉपुलेशन है, विच इज एक्चुअली बिकमिंग अ काइंड ऑफ अ डिविडेंड। इससे एक फायदा ही हमें मिल रहा है एज अ कंट्री। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने कहा कि वी डोंट नीड टू कॉपी, यस ऑफ कोर्स वी डोंट नीड टू कॉपी, बट इंडिया का अपना एक रिच कल्चरल हेरिटेज है और नहीं टेक्सटाइल इंप्रूव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, देयर आर थिंग्स इन इंडिया व्हिच नीड काइंड ऑफ जिसका देयर इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म व्हिच कैन गो आउट। एंड एग्जांपल मैं आपको तो ज्यादा इंडिया छोड़ दिया, हम कश्मीर के जो हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है व्हिच आर अगेन अ पार्ट ऑफ टेक्सटाइल, ट्रू, दे आर ग्लोबली नोन और डिमांड भी काफी अच्छी बढ़ रही है, काफी अच्छा मार्केट है, काफी अच्छे लेवल में जा रहा है।
हमारे कार्पेट्स, हमारे पश्मीना के प्रोडक्ट्स, पेपर माशी डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन, दे आर अ ब्रांड इन इटसेल्फ। सही बात। आप अगर चाहे यूरोपियन मार्केट में या वेस्ट एशियन मार्केट में पश्मीने के प्रोडक्ट को रखिए, अब तो हमें जीआई टैग मिला है, लेबल साथ लगा दिए, इट सेल्स लाइक अ हॉट केक। तो वो चीजें हैं। द ओनली लिमिटेशन इज, मेरे हिसाब से जो पोटेंशियल हमारे अंदर है उसको हमने फुल्ली रियलाइज करना है। और उसी रियलाइज करने में आई थिंक वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक निफ्ट। जी जावेद साहब, आपने 2020 में इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, कहाँ देखते हैं आज की डेट में ये कहाँ है, वेयर डज इट स्टैंड? देखिए मैंने अराउंड जून 2020 में ज्वाइन किया और 3.5 years, राइट। जब मैंने ज्वाइन किया तो दो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन जब मैंने एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया। एक ये कि वी नीड टू क्रिएट एन एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, भाई हम क्या हैं और कहाँ हैं। जी। तो मेरी एक कोशिश थी कि हम लोग, जो हमारा परमानेंट कैंपस है वो बहुत शानदार कैंपस है। इनफैक्ट जो भी हमारे विजिटर्स आते हैं बड़े इंप्रेस होके जाते हैं कि आपका बिल्कुल शानदार कैंपस है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। तो वो एड्रेस हमने क्रिएट करना है और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हम लोग वहाँ परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो गए विथ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज। ऑलमोस्ट जो एक रेजिडेंशियल 100% रेजिडेंशियल कैंपस के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें उस कैंपस में हैं। क्लासरूम्स, लैब्स, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर, स्पोर्ट्स फील्ड, हॉस्टल्स, स्टाफ क्वार्टर्स। हमारा एक छोटा सा हमने एक कॉम्प्लेक्स किया है क्रिएट, जिसमें बैंक है, वी हैव डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेशनरी शॉप, वी आर ट्राइंग फॉर अ हेयर सैलून एंड ऑल दैट। मतलब एक कॉम्पैक्ट और 100% कंप्लीट काइंड ऑफ अ कैंपस है। तो एक अच्छी एक मुझे मेरे रेजिडेंशियल, ये सारा रेजिडेंशियल है। हमारे जितने भी हॉस्टल स्टूडेंट्स है, वी हैव द स्पेस फॉर देम। मतलब जितने भी आपका एनरोलमेंट है, जितना अभी एनरोलमेंट, सबको विद इन कैंपस ही रहना है। दे हैव द चॉइस। अच्छा। और अराउंड 80% ऑफ देम स्टे इन द कैंपस। अच्छा। 20% आर स्टेइंग एज ए पीजी। तो पर्सनल लेवल पे एक अच्छी अचीवमेंट रही कि लास्ट ईयर हम शिफ्ट हुए, एक परमानेंट कैंपस हमारा वहां पे ऑपरेशनलाइज हो गया, चल रहा है ठीक अच्छे से। दूसरा ये था कि नंबर ऑफ कोर्सेज 2020 तक कम थे, 2 थे, 2 से लास्ट ईयर तक, इस साल तक हमने 5 कर दिए उसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट में वी विल बी एडिंग मोर। तीसरी एक ये चीज थी जिसमें मुझे अभी भी थोड़ा गैप लग रहा है, एंड वी आर वर्किंग इज, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, वी नीड टू रीच लोकल पीपल कश्मीर एज अ सोसाइटी, कि फैशन टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है, और अगर आप इंटरेस्टेड है इस करियर को ज्वाइन करने के लिए, देन वी आर हियर एज NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें आप हमें ज्वाइन करेंगे और हम इंशाल्लाह आपका हेल्प और सपोर्ट करके आपको उस मुकाम तक ले जावेद साहब, we have a call online. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। आप कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैं हजवारा से बशीर अहमद बात कर रहा हूँ। जी बशीर साहब फरमाइए। मेरा बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है जी, विद कॉमर्स बैकग्राउंड। जी जी। तो इज ही एलिजिबल फॉर दिस NIFT कोर्स? इसमें और स्कॉलरशिप के लिए मैं उसको ये कैरियर ओरिएंटेशन ऐसे ही देना चाहता हूँ सर। जी बशीर साहब, पहले मुझे लगता है आप इसके बारे में अच्छी तरह से सोचिए, नहीं तो अगले हफ्ते से इनके फॉर्म्स वगैरह अगले सेशन के लिए निकलना है, इनसे आप बात कीजिए। जी जी जी। 10+2 अगर उन्होंने एग्जाम देना है, दिया है, ही इज एलिजिबल। एप्लीकेशन फॉर्म्स नेक्स्ट वीक निकल रहे हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि 10+2 पास हो, अभी पास नहीं है, अभी अगर वो पढ़ ही रहा है वो फॉर्म भर सकता है जी। और उसके बाद टेस्ट जो है अराउंड फरवरी होगा, वो उसमें भी बैठ सकता है। उस टाइम पे भी विल नॉट आस्क कि आपका पास हुआ कि नहीं जी। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग विच हैपन्स समवेयर इन द मे जी, उस टाइम पे ही और शी शुड हैव कंप्लीटेड द 10+2 एग्जाम। जी जी जी। उसके बाद इमीडिएटली उनका एडमिशन हो जाएगा, और काफी सारे कोर्सेज है जो मैंने अभी मेंशन किए, उसमें से दे कैन चूज। बशीर साहब, मुझे लगता है कि आपको क्लियरेंस मिल गई होगी अपने बच्चे के लिए। अच्छा सर, NIFT के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं यहाँ सेटअप करने में? देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कश्मीर का अपना एक, जैसे मैंने कहा, रिच एक हेरिटेज है आर्ट एंड क्राफ्ट्स का। जी। तो जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी क्राफ्ट्स की है, वहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी का एक कैंपस होना ज़रूरी था। तो उसी को मद्देनजर रखे यहाँ कैंपस की बुनियाद रखी गई। और दूसरा ये है कि एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर था कि अगर ऐसा एक कैंपस यहाँ सेटअप कर लेते हैं, जो यहाँ के यूथ है जो इस सेक्टर को ज्वाइन करने हैं, उनको लोकली ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल। तो रेस्पॉन्स कैसा है स्टूडेंट्स का? रेस्पॉन्स हमारा लोकल ग्रो कर रहा है। अच्छा। मगर मैंने ऐसे स्टार्ट में शुरू में भी कहा, उसमें क्या लगता है इतने सालों में कितने लोगों ने कम्पीट किया होगा पर ईयर?
हमारे यहाँ से जो एडमिशन टेस्ट हमारे यहाँ तो अराउंड 50-60 स्टूडेंट सिट फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फ्रॉम कश्मीर श्रीनगर सेंटर ऑनली। नहीं, टोटल इतनी है कि सिलेक्शन इतना होता है? सिलेक्शन इससे ज्यादा होता है। एक तो होता है कि हजारों में बैठते हैं एग्जाम वो ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप लें, क्योंककि मैंने जैसे कंबाइंड टेस्ट होता है ऑल 18 कैंपसेस का, तो रफली जो हमारे 18 कैंपसेस की इंटेक है दैट इज अराउंड 3,000 to 3,500। उसके अगेंस्ट में देयर आर अराउंड 20,000 एप्लीकेशंस, 20,000 एप्लीकेशंस आती हैं और 20,000 एप्लीकेशंस में से फिर टेस्ट वेस्ट जितने भी हमारे प्रोसेस है फाइनलाइज वी फाइनली टेक अराउंड 3,300। आपके यहाँ कितनी सीट्स हैं? हमारे यहाँ अभी 5 प्रोग्राम्स हैं और उसमें अराउंड 200 इंटेक कैपेसिटी, यानी 200 स्टूडेंट्स कैन जॉइन अस। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उम्मीद है हम 1 या 2 प्रोग्राम्स ऐड कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से इंटेक बढ़ जाएगी। अच्छा, जो आपके पास आउट है प्लेसमेंट चांसेस क्या हैं इनकी इंडस्ट्री में, जैसे या ऑनलाइन जो ई पोर्टल वगैरह हैं उसमें अमेजॉन है, बाकी कुछ है, मैं ब्रांड नेम नहीं लेना चाहूँ, मिंत्रा है या बाकी लोग हैं, उनके साथ काम करना पड़ेगा, दे कैन क्रिएट देयर ओन ब्रांड? दोनों ऑप्शंस हैं और 80% ऑफ देम गेट कैंपस प्लेसमेंट्स। अराउंड 10 to 15% मैं रुझान की बात कर रहा हूँ, 10 to 15% पीपल से कि हम लोग अपना एक खुद का बिजनेस सेटअप करें। 4 to 5% of them go for higher education. That is what has been the trend. और जो कैंपस प्लेसमेंट है बिल्कुल इंस्टीट्यूशन इसको ओन करती है। अच्छा, कैंपस प्लेसमेंट्स हैं? होती हैं, रेगुलरली होती है, हर साल होती है। और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि जो 18 कैंपसेस है, जितनी भी हमारी वैकेंसीज होती हैं कॉर्पोरेट से इंटरेक्ट और टाई अप करके, वो सारी 18 कैंपसेस की पूल होके वो वैकेंसीज ऑफर होती है टू द ग्रेजुएट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जितने भी 18 कैंपसेस है। दैट मीन्स अगर एक वैकेंसी मुंबई में है, दिल्ली में है और हमारे दिल्ली कैंपस को वहां से लीड मिल गई, दैट वैकेंसी इज इक्वली अवेलेबल टू स्टूडेंट हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम निफ्ट श्रीनगर। तो ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी प्लेसमेंट्स होती है। देन एक रेगुलर फीचर चलता है जिसमें वो जो इंडस्ट्री के पैनल्स आते हैं उनके साथ बैठते हैं, उनका अपने एक प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो कंप्लीट होता है, उसके बाद दे गो। तो रुझान यही है, जैसे मैंने कहा 15% 10 to 15% दे स्टार्ट बिजनेस ऑन देयर ओन, 4 से 5% स्टूडेंट। पूरे मुल्क में आपके 18 इंस्टीट्यूशन? वी हैव 18 इंस्टीट्यूशन। ये 18 इंस्टीट्यूशन में जो हमारा श्रीनगर का है, वेयर डज इट स्टैंड? इसकी स्टैंडिंग क्या है? देखिए, मैं आपको जो हमारे अर्लीस्ट कैंपस जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली स्टार्टेड अराउंड 1986, अराउंड 40 साल, 35 ईयर्स, मोर देन 35 ईयर्स। उसके बाद जो दूसरे कैंपसेस हैं हैदराबाद, बेंगलोर, ये भी 15-20 साल से चल रहे हैं। तो रिलेटिवली इस स्कीम ऑफ थिंग्स में वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कैंपसेस, बट गिवन व्हाट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट वी हैव स्टार्टेड इज एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स, तो हम लोग काफी अच्छा पेस पकड़ के आगे चल रहे हैं। एज ऑफ नाउ वी शुड बी अराउंड अमंग द फर्स्ट टॉप जो 10 है उसमें वी वुड बी देयर, गिवन व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन लास्ट। अभी रैंकिंग नहीं हुई है, लेकिन रैंकिंग होती रहती है, रैंकिंग होती रही, काफी सारी रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु डू द रैंकिंग। कुछ तो निफ्ट का पैन इंडिया रैंकिंग लेते हैं, कुछ फिर इंडिविजुअली रैंकिंग लेती है, बट आई वुड से विद कॉन्फिडेंस अराउंड फर्स्ट 10 में वी शुड बी देयर। एंड कोशिश है अब जो ही जितने ग्रेजुएट्स हमारे निकलें, क्योंकि सबसे बड़ा एक इंडिकेटर जो रैंकिंग में होता है वो ये होता है कि जो आपके पास आउट्स है, ग्रेजुएट्स हैं, वो कहाँ गए हैं, उनका सक्सेस रेट कहाँ है, वो किस इंडस्ट्री में गए, उनकी प्लेसमेंट कितनी अच्छी हुई, उनका इम्पैक्ट वहाँ कितना अच्छा है। दैट इज वन ऑफ द एक इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स ऑफ रैंकिंग। तो हमारे अभी 3 बैचेस कंप्लीट करके निकल चुके हैं और 4th वन विल बी एमएससी मूविंग आउट, तो उनके सक्सेस पे हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। वी आर लुकिंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स दैट, इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे रिजल्ट्स भी उसमें आएंगे। अच्छा, जावेद साहब कहते हैं कि ये मैंने सुना है कि आपके जो फीस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स का, दिस इज ऑन द हायर साइड, तो ये भी सुनने में आया है कि शायद जो इकोनॉमिकली लोअर रैंक पे हैं हमारी सोसाइटी में, वो शायद इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आपका क्या कहना? एक एप्रीहेंशन है और ये मैं क्लियरली बताना चाहूँ कि हमारा फीस स्ट्रक्चर जो दूसरे कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज कॉलेज है उससे हायर है जी, बट कुछ लाखों में है मुझे लगता है। हाँ, इट इज इन लैक्स, एब्सोल्युटली इट इज इन लैक्स, बट उसमें वी रियलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, वो रियलाइजेशन है वी हैव अवर ओन स्कीम, हमारी खुद की एक स्कॉलरशिप स्कीम है, सार्थक उसको हम बोलते हैं, जिसमें हर साल हम जो ट्यूशन फी है, जो फीस है, उसका वेवियर देते हैं टू द डिजर्विंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 50% to 100% डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केस। अच्छा, 100% भी मिल जाता है, 50% भी बहुत है। हाँ, और अगर मैं आपको इंडिकेटर दे दूं, ऑलमोस्ट
ऑन एन एवरेज हर साल 30 लाख की स्कॉलरशिप्स हमारा कैंपस दे देता है अपने बच्चों को, 30 लाख की स्कॉलरशिप्स। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है NSP, उस पर काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, जो जितने भी फाइनेंशियली जिनका वीक बैकग्राउंड है उनके लिए, और उनका ट्यूशन फी बिल्कुल हमें रियम्बर्स इंस्टीट्यूशन पे आ जाता है। तो आई एम श्योर जो उस बैकग्राउंड जिनका जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे अंदर जो इंटरनल कैंपस की स्कॉलरशिप्स हैं या फिर NSP बोथ। आपका जो इंस्टीट्यूट है ये NIFT, ये UGC से रिकॉग्नाइज्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से? ये रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट, लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एब्सोल्युटली जी। अच्छा सर जावेद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कलर्स का क्या इम्पैक्ट रहता है एक आदमी की ज़िंदगी में, क्योंकि आप फैशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। आजकल आप देखिए कि आज भी मौसम ख़राब था, सर्दियाँ कश्मीर में शुरू हो गई, एवरीवेयर इट इज़ डल एंड ड्रैब, और सारा वो कुछ हेज़ लग रहा है, हेज़ी। एक हिसाब से देखा सुबह जब आदमी निकलता है तो मूड ख़राब होता है, मुझे लगता है मेरा ही नहीं, शायद आपका भी होता होगा। एब्सोल्युटली। तो कलर्स का क्या आपका लगता है कि क्या? ऑटम एक ऐसा सीजन हमारा आता है, हालांकि इसकी अपनी ब्यूटी है। अगर आप चिनार के किसी बाग में इस मौसम में जाए तो आपको बहुत अच्छे वाइब्रेंट, फास्ट और वो फायरी कलर्स दिखेंगे। नहीं, वंस द विंटर सेट्स इन, एब्सोल्युटली, देन दैट गोज अवे। बट विंटर की एक अलग एक चार्म है, एक वाइटनेस आ जाती है। बट आई एग्री विथ यू कि जो ऑटम का सीजन है ये डल होता है जी। इसमें वो रौनक नहीं रहती है, आपका ग्रीन पैचेस आपको कहीं नहीं मिलते, फ्लावरिंग सीजन कहीं नहीं होता। कश्मीर में ऑलमोस्ट एक जिसको बोलते हैं वो जान सी चली जाती है, जी जी, वैसा कुछ हाल है। और इनफैक्ट मेडिकली मैंने कुछ ब्राइट सनलाइट भी नहीं होती, वो भी नहीं होती, दैट इज अगेन एक हेजीनेस होती है जी। तो मेरे मेडिकल कुछ मेडिकोज है, डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि इस सीजन में साइकेट्रिक केसेस जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, दैट माइट बी ए सीजनल इम्पैक्ट। ट्रू। तो इसमें मुझे लगता है वो ब्रेक करने के लिए एक अच्छा एक तरीका ये है कि थोड़ा आप वाइब्रेंसी अपनी जिंदगी में ला, आप कुछ कपड़े फास्ट कलर के, जैसे इंग्लैंड में उन्होंने कहा कि मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था इंग्लैंड में कि ये आप लोगों ने कैसे, क्योंकि वहां भी यही चार सीजन है, उन्होंने कहा वी हैव बीट द डलनेस बाय कलर्स। एब्सोल्युटली। तो कलर्स, अब जो हमारे यहाँ कलर टीन लगाते हैं अपने घरों के ऊपर, ये तो इंग्लैंड से ही उन्होंने कॉपी किया हुआ है। हाँ, और पर्सनली जैसे मैंने कहा, आप कपड़े जो आप पहने, कलर्स ऑफ द शर्ट्स, हमारे कलर, हमारे हम जो कलर नॉर्मली पहनते हैं वो डल ही होते हैं जी। फास्ट आप ले ले थोड़ा, उससे एक वो जो ब्रेक होता है, डलनेस जो है मार्केट में भी कलरफुल लगेगा। हाँ, डलनेस जो है ब्रेक हो जाती है, तो वो चीजें दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। जी। अच्छा, ये भी मैंने किसी से सुना था कि ये जो आपके पास आउट्स हैं, इनकी जो जब इनकी जॉब प्लेसमेंट होती है, पता नहीं ये किस हद तक सही है कि क्या इनकी सैलरी 5 लाख से लेकर 50 लाख तक भी होती है? ये ऐसे है, डिपेंडिंग ऑन द केस, ऑन एन एवरेज अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। मैं आपको एक लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट था, वो हालांकि यूपी का है, उनकी एक प्लेसमेंट हुई थी टर्की बेस्ड एक कंपनी में, और वो एक इमर्जिंग एरिया हमारा फैशन में है, विच इज़ AR VR, जिसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, उस सेक्टर में गया था। तो उसकी प्लेसमेंट जो थी, आई थिंक अराउंड 25 लाख की पैकेज था, विच वॉज ऑफर्ड टू हिम इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन। और इस इंडस्ट्री में एक चीज़, एक क्लियर एक इंडिकेटर है, एक ट्रेंड है कि स्टार्टिंग आपकी भले ही आप 20 लाख, 15 लाख या 10 लाख से आप स्टार्ट करो, विद इन अ क्विक स्पैन ऑफ 3 years एक्सपीरियंस जब आप गेन करते हैं तो आपका जो मंथली आपका स्टाइपेंड है या सैलरी है, पैकेज, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी डिमांड है इंडस्ट्री की, और पोस्ट कोविड तो काफ़ी बूम चला इस इंडस्ट्री में, काफ़ी हायरिंग हुई, तो उस हिसाब से काफ़ी डिमांड रही ग्रेजुएट्स की। सर, आपका जो मैंडेट है वो नॉलेज पार्टनर्स के तौर पे है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज आप मानते हैं कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर भी टेक्सटाइल सेक्टर है। हाँ, बिल्कुल पार्ट है। इस सवाल के जवाब लेने से पहले एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 जी जी, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी निफ्ट के बारे में। इसका जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस के थ्रू होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है? अपना तारुफ दीजिए। आपने अपना नाम नहीं बताया, कहाँ से? कैसर रियाज पीर है सर, हंदवारा से। जी जी, कैसर साहब। जी रियाज साहब, इसका जो एडमिशन होता है ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, 2 कंपोनेंट्स है उसकी।
एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें हम बच्चे की थोड़ा एलिमेंट ऑफ क्रिएटिवनेस कितनी है इसमें वो चेक करते हैं। वो एक हैंड्स ऑन एक सिचुएशन होती है, कुछ आपने बनाना है, कुछ आर्ट पीस, कुछ क्राफ्ट पीस, कुछ प्रोडक्ट बनाना है, जिसका हम आपकी सारी चीज़ें आपके टेबल पे उस टाइम पे रख देते हैं। उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे आपका एक रैंक बनता है ऑल इंडिया लेवल पे। फिर उसके बेसिस पे आपकी क्या प्रेफरेंस है, किस कैंपस में आप जाना चाहते हैं, कौन सा कोर्स डिसाइड करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें आप एडमिशन। जी, हम बात कर रहे थे कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसको आप टेक्सटाइल में ही जोड़ते हैं, तो क्या आपने कंट्रीब्यूशन किया है और नॉलेज पार्टनर सब किस तरह से हैं? देखिए, जब श्रीनगर यहाँ पे श्रीनगर निफ्ट का एक कैंपस यहाँ पे, तो एक लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये भी है जो J&K का आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उसके रिलेटेड हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट इज़ इक्वली एन इम्पॉर्टेंट, एक हमारा एक फोकस इस पे भी है अपार्ट फ्रॉम जो हमारे रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम्स चलते हैं। जी। तो पिछले 3-4 साल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बेसिस पे हमने स्टडीज़ ली हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, हमारे यहाँ जैसे आपने GI की बात की, काफ़ी सारे हमारे क्राफ्ट्स ऑलरेडी GI रजिस्टर्ड हैं जी। तो गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट का एक इनिशिएटिव था कश्मीर का कि हम यहाँ से 7 क्राफ्ट्स और ले लें और उनकी स्टडी करें। उसका एक डोजियर बनाना पड़ता है, वो डोजियर जाके एक GI रजिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ सबमिट करना पड़ता है। GI जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के अंडर हमें एक रजिस्ट्रेशन मिलती है। उसका मुद्दा मकसद ये है कि अगर आप कोई चीज़ है जिसको GI रजिस्ट्रेशन आप लेना चाहें, इसमें क्या यूनिकनेस है जिससे एक अलग ही क्रिएट आइडेंटिटी करती है उस रीजन के रिलेटेड, तब जाके आपको वो GI रजिस्ट्रेशन मिलती है। और अगर हमारे क्राफ्ट्स यहाँ हैं तो हमने उनको स्टडी करके एक क्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता, वो उसमें स्टडी करके हमें वो यूनिकनेस को बाहर लाना पड़ता है और प्रूव करना पड़ता है कि दिस कारपेट, दिस पश्मीना प्रोडक्ट, दिस पेपर माशी प्रोडक्ट इज यूनिक टू दिस रीजन। तो उसकी हमने 7 डॉक्यूमेंट्स या डोजियर्स तैयार करके वी हैव सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट कश्मीर, और उन्होंने इन टर्न आई थिंक GI रजिस्ट्री को ऑलरेडी सबमिट किए। उम्मीद है कि ये जो 7 क्राफ्ट्स हैं इनका जब GI रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो डायरेक्टली जो बेनिफिट है आर्टिजन्स को जाएगा, बिकॉज एक अलग से एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है क्राफ्ट के रिलेटेड। जब साहब ये जो GI की बात मैं पिछले कई प्रोग्राम्स में ये सुनता आया हूँ और इस पर डिस्कस भी हुआ, बिल्कुल, क्या इससे हमारा जो क्राफ्ट है इसकी सेलेबिलिटी में, इसकी मार्केटिंग में किस इजाफा होता है या बस इसकी जेन्युइननेस के बारे में ये है? नहीं, इजाफा तो होता है। देखिए, एज ए कंज्यूमर अगर मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे कश्मीर का कारपेट चाहिए, तो अगर एक लेबल उसके ऊपर आता है कि ये कारपेट है, ये कश्मीरी कारपेट है और इसमें एक GI टैग मिल गया, हमें GI रजिस्ट्रेशन मिल गई, तो एक प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी, क्योंकि हमारा कारपेट विल बी कंपीटिंग विद द हिमाचल कारपेट, विद राजस्थान का जो कारपेट बनता है उसके साथ तो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए GI रजिस्ट्रेशन मस्ट है। इससे डायरेक्ट बेनिफिट्स प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाते हैं और आर्टिजन्स को बेनिफिट मिलते हैं जी। तो वो जो यूनिकनेस आपने क्रिएट करनी है अपनी प्रोडक्ट की, उसके रिलेटेड एक GI रजिस्ट्रेशन मस्ट है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। एक दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट था जो आपने देखा होगा कि हमारे क्राफ्ट्स, हालांकि यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली भी जाते हैं। अपने शॉल्स देख लीजिए, तो यहाँ नीचे के सेगमेंट में एक 1000-2000 में भी आपको शॉल मिलते हैं। इट कैन गो अप टू 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख का भी शॉल जाता है, तो एक हाई सेगमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक हमने देखा 1 साल 2 साल पहले कि जो शॉल्स या कोई हाई कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं उनकी पैकेजिंग नहीं होती है जी। बिल्कुल आपको एक पॉलीथीन लिफाफ में रैप करके दिया जाता है, 10,000 15,000 जो भी है। तो उसको गैप को मद्देनजर रख के हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है फॉर कश्मीर बेस्ड क्राफ्ट्स एंड जम्मू बेस्ड क्राफ्ट्स दोनों में, जिसमें हमने उन क्राफ्ट्स की पैकेजिंग डिजाइन की यूनिक टू दोज क्राफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द शेप, साइज, कलर पैटर्न्स, और एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए अगेन आइडिया ये था कि अगर हम डिजाइनर्स बनाएंगे, कोशिश करेंगे उसको इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने की, तो उससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और डायरेक्ट बेनिफिट जो है आर्टिजन्स को जाएंगे। हालांकि काफ़ी हद तक मैंने देखा यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छे लेबल्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स के करते हैं, दे हैव डिजाइनर देयर ओन, खुद भी उन्होंने डिज़ाइन किया। एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और आई एम श्योर कि ये चीज़ें जब इंटरवीन होंगी, इंट्रोड्यूस होंगी इस सेक्टर में, जो मॉडर्न टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स हैं इस सेक्टर में आएंगे, तो इसी से जो क्राफ्ट रिवाइवल की बात हम करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं, इन्हीं चीज़ों से
उम्मीद है कि वो हो जाएगा। उसके अलावा हमारे काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, वो कैंपस में ही चलते हैं, जिसमें हम आर्टिजन्स को डायरेक्टली लाते हैं। लास्ट विंटर में हमने सब थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। आप जो आर्टिजन्स की बात की, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए सर। फिदा अली फ्रॉम आलमगिरी बाजार। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल है कि जो जीआई टैगिंग हम करते हैं पश्मीना पर। जी फिदा अली। जी 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 पूछिए फिदा साहब पूछिए। जीआई टैगिंग जो हम करते हैं पश्मीना पर, जब हम प्रेस के लिए उसको मतलब लेते हैं तो वो गायब होता है। तो जीआई टैगिंग जो होती है इनकी करते हैं पश्मीना पर। जी। पश्मीना जब हम लेते हैं प्रेस के लिए धोबी के पास, तो जब वो प्रेस उस पर चलाते तो वो गायब हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको मतलब हम। तो एक बात ये है कि मनी टाइम्स मैंने ये सवाल इनसे कहा है कि ऐसी मतलब कोई टैगिंग बताओ जो प्रेस करने से गायब नहीं हो जाएगी। दूसरी सवाल ये है कि they are saying that we are giving Philip to the handicraft, but since last 3 years we have no pashmina, and I had been there. I told them you please give us that. उन्होंने कहा कि साइकॉप को हमने दे दिया है। 3 साल गुजर चुके, अभी तक रॉ मटेरियल कहीं पर हमें मौजूद नहीं मिले। तो इस सिलसिले में जनाब से अर्ज करता हूं इन 2 चीजों के मुतालिक आप कुछ फरमाए ताकि हम भी मुतमईन हो जाए। जी। एक अच्छा इन्होंने पॉइंट आउट किया कि हम लोग जो जीआई टैग जब उसके ऊपर लगाते हैं तो जब वो वॉशिंग के लिए जाता है तो वो धुल जाता है। जी। अगेन दिस इज समथिंग एंड दिस इज वायर आई थिंक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक निफ्ट शुड कम फॉरवर्ड एंड इट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ मेजर इशू। एक वॉशेबल टैग क्रिएट करना है जो उसके साथ अटैच हो और जो अगेन जो वॉशिंग प्रोसेस है उसके थ्रू निकले और बिना डैमेज होके निकले। मेजर इशू नहीं है, दिस कैन बी सॉर्टेड आउट। देयर आर मटेरियल्स, देयर आर प्रिंटिंग टेक्निक्स जो बिल्कुल 100% वॉशेबल है, वो यूज हो सकती है और वो विदाउट डैमेज प्रोडक्ट के साथ रिटेन होंगे। या ऐसा नहीं हो सकता जब उन्होंने वॉशिंग वगैरह की फाइनल प्रोडक्ट उसके बाद भी टैग उसके बाद भी ये टैग लगा। दैट इज अगेन, लेकिन इनका ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स इनको वहां भेजने पड़ते हैं टेस्टिंग के लिए, जी, टैगिंग के लिए। जी, जी, तो ये शायद जब उनका फाइनल वहां से आ जाता है फिर पैकिंग से पहले शायद वॉशिंग करने, दैट कैन बी। बट एक चीज एक अच्छा इनपुट मिला इनसे, तो दैट कैन बी सॉर्टेड, शुड नॉट बी एन इशू। इन्होंने मटेरियल की बात की कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। आई एम श्योर एक गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो रॉ मटेरियल के रिलेटेड बैंक्स, वूल बैंक एंड ऑल दैट वो क्रिएट कर रहे हैं। तो बट आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव अ क्लियर कट आंसर टू दैट बिकॉज आई एम नॉट, आई मीन से डायरेक्टली कनेक्टेड टू हैंडीक्राफ्ट। अच्छा सर, ये हम बात कर रहे थे कि टेक्सटाइल्स की, चाहे पश्मीना हो जो हमारा लोकल है यहाँ, इसकी वीविंग में कुछ डिजाइन, कुछ पैटर्न आपने कुछ नया इनिशिएटिव दिया हुआ है कुछ? नहीं, इसमें अगेन जो डिजाइनर्स इंट्रोड्यूस करने हैं फिर या तो वीविंग में भी हो सकते हैं या फिर प्रिंटिंग में भी हो सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली अभी तक हमने वी हैव ऑलरेडी आई मीन से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं when they are completing the degree they sit with the clusters, craft clusters, artisans के साथ, different artisans के साथ उनका एक इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं जहाँ पे वो उनके डिज़ाइनर्स को समझते हैं। उसके बाद अगर उसमें चेंज की गुंजाइश है तो डायरेक्टली हमारा स्टूडेंट जो है, फैकल्टी उनके साथ बैठते हैं और उनके साथ वो डिज़ाइनर्स को चेंज करें। चेंज करने का मकसद यही है कि जो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनर्स हैं, पैटर्न्स हैं जो ट्रेंडी हैं या आने वाले ट्रेंडी होने वाले, वो इंट्रोड्यूस हो जाए। तो हमारे क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव स्कीम है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स प्लस द फैकल्टी, दे सिट विद द आर्टिजन्स एंड डायरेक्टली उनका एक एक्सचेंज होता है जिसमें अगेन को लर्निंग होती है। हमारा स्टूडेंट क्राफ्ट को समझने की कोशिश करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है, बट इक्वली जो आर्टिजन्स हैं वो हमारे डिजाइनर्स से नए नए डिजाइनर्स और कॉन्सेप्ट जो है। अच्छा, आर यू इन द स्किल डेवलपमेंट? हाँ, स्किल डेवलपमेंट में जैसे उसमें कह रहा था कि हमने लास्ट ईयर में विंटर के पीरियड में 1 महीने का एक रिग्रेस हमने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप किया था। उसमें हमने जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बैकवर्ड, एक कॉलर है हमारे साथ। जी, हेलो।
हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के 2 बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, पखरपुरा और सुरसियार, वहाँ से हमने 50 आर्टिजन्स लाए थे जिनको हमने अपस्किलिंग कराई। ये वो थे जो कटिंग टेलरिंग में थे जी, बुटीक एंड ऑल दैट उनका चल रहा जी, था जी। और हम चाहते थे कि अगर उनकी जो लेवल ऑफ स्किल है उसको हम थोड़ा अपस्किल करें, बढ़ाएं। और उसमें अगेन कॉन्सेप्ट ये था कि नए डिजाइन एलिमेंट्स, छोटी छोटी टेक्निक्स उनको सिखाएं कैसे आप कर सकते हो, और ये भी थोड़ा समझ उनको दे दें कि आप मॉडर्न टूल्स जो है कैसे यूज कर सकते हो। देखिए जावेद साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ जो नॉर्मल, अगर टेलर की बात करें मिसाल के तौर पे, किसी भी बड़े शोरूम पे जाइए, नॉर्मली हमारा जो कोट मिसाल के तौर पे बनता है, ये वही ट्रेडिशनल बनता है जो पिछले मुझे लगता है 40-50 साल से है। बिल्कुल वही डिजाइन है सर। हालांकि इसमें काफी कुछ किया जा सकता है, हुआ भी है, किया जा सकता है, स्कोप है। आपने देखा होगा भी, जैसे विंटर आने वाला है, फैरन में काफी सारे वो एक्सपेरिमेंट हुए हैं जी, और अच्छे हो रहे हैं। मतलब देयर आर पीपल जो उसका मतलब वो बड़े क्रिटिकल है इसके रिलेटेड कि नहीं जी फैरन की शेप ही खत्म हो गई ये वो, बट आई थिंक ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है किसी भी चीज को और उसको चलने चाहिए। इट शुड ग्रो एज लॉन्ग एज देयर आर टेकर्स, पीपल ले रहे हैं उसको, लेट इट ग्रो। और अगर ऑफिस गोरस के लिए काम आया ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि उसमें अब कांगड़ी साथ नहीं चाहिए, बट ही स्टिल वुड लाइक टू वेयर द फैरन ट्रू फॉर द कंफर्ट ऑफ इट। जी, बिल्कुल उसको, हाँ, विंटर में बड़ा अच्छा लगता है। एक अगर आपका कंफर्ट लेवल किसी ड्रेस के रिलेटेड है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी अप हो जाता है। इट लुक्स स्मार्टर, गिव्स यू मोर दैट काइंड ऑफ एज, दैट कॉन्फिडेंस। तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। और दूसरा ये भी है कि हमें एक बड़ा एक मार्केट कश्मीर से बाहर है फैरन का, जो बढ़ रहा है। मैंने काफी सारे दोस्त अपने जो दिल्ली में हैं, दिल्ली के हैं, फैरन पहनते हैं, फैरन पहनते हैं, स्पेशली जो लेडीज का है जिसमें एम्ब्रॉयडरी का काफी अच्छा काम होता है। इट हैज द पोटेंशियल टू गो ग्लोबल फैरन। द ओनली थिंग इज इट नीड्स अ बिट थोड़ा चेंजेस, material changes, design changes, pattern changes and color changes. It can be introduced anywhere. North India में तो अब winter जो है बड़ा काफी cold हो रहा है. It can be, there's a big market where we can insert. नहीं, वहाँ तो introduce हो गया है काफी हद तक. Hello, we have a call on line. Hello. जी, अपना तारुफ दीजिए जनाब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अपना तारुफ दीजिए, कौन सा आप कहाँ से? हजरत मैं जनाब सलीम यूसुफ वो सोपर पे तफसील कट करा. जी सलीम साहब फरमाइए. अशोक जानन ये है कि यूज इन फैशन टेक्नोलॉजी से आत्म से हेकान का डिस्टेंस मोड के जरिए का ये कोर्स गसित यमकिन जन की मतलब लड़के या कोई घर में ऑलरेडी काम आता करा ताकि तुम ते हेकान आत्म की हिस्सेदारी करे फ्यूचर कौन बने. अच्छा क्या सलीम साहब? नहीं, इसमें देयर इज अ क्लियर कट आंसर नो. ये ऐसा कोर्स है, ऑन कैंपस है, हैंड्स ऑन है. और इनफैक्ट एक अच्छी चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ नाज़रीन तक. जो हमारे कोर्सेज हैं, जो पढ़ाने का तरीका है और जो इसका एग्जामिनेशन का टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू किसी भी यूनिवर्सिटी का आप ले लीजिए. टोटली डिफरेंट इन द सेंस जो लिखाई पढ़ाई होती है वो यहाँ हमारे यहाँ नहीं होती है. अच्छा. जो भी हमारा टेस्ट होता है वो हैंड्स ऑन है. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एंड टर्म एग्जामिनेशन जो होने वाला है ये अराउंड 10 दिसंबर से 20 दिसंबर होगा, जिसमें बच्चों को हमने बताया है कि एक असाइनमेंट दिया है. वो असाइनमेंट उनको 5 दिन पहले 10 दिन पहले हमने दे दिया है. और वो क्या है, जैसे कोई फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करता है उसको हमने ये बताया कि जाके वूल नमदा का जो लेफ्ट ओवर है आपको वो मिला है, आप जाके इसका एक कोट डिजाइन करो और अच्छा इंप्रेसिव कोट विच इज वेदर फ्रेंडली, विच इज इसका आउटलुक बहुत अच्छा होना चाहिए. वी लीव टू यू. अब वो बंदा, वो जो बच्चा है, वो स्टूडेंट जो लैब में बैठेगा ये 10-15 दिन, उसका कोड बना के लेके आएगा. और फाइनल एक हमारी एक जूरी होती है जिसको जो एग्जामिनेशन इवेल्युएशन एक मेथड है, 4 या 5 एक्सपर्ट बैठते हैं, वो अपना प्रोडक्ट लेके आता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसका ओरिजिनलिटी ऑफ द डिजाइन, एस्थेटिक्स, उसकी यूजेबिलिटी वो डिफेंड करेगा. उसके बेसिस पे उसको मार्क्स मिलते हैं. तो इसमें जैसे मैंने कहा वो लिखाई पढ़ाई ऑलमोस्ट नील है और सारा का सारा हैंड्स ऑन है, चाहे पढ़ाना है क्लासरूम में, लैब्स में या फिर एग्जामिनेशन. जी. अच्छा, ये जो फैशन डिजाइन है, कुछ इंटीरियर डिजाइन भी इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, काफी हद तक. एक कोर्स हमारा, क्योंकि अब तो घरों में कमरों की भी सजावट और फैशन का इसका रिवाज चल पड़ा है. जो एक्सेसरी डिजाइन है
वो एनीथिंग विच इज इवन फर्नीचर, जैसे मैंने कहा इंटीरियर्स उसमें आते हैं, उसमें डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो हमारे कमरों में लगते हैं, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है. तो दैट इटसेल्फ इज अ 4 साल. हमारे तो इंडिया के टॉप जो फैशन डिजाइनर्स हैं जो बॉलीवुड से वाबस्ता हैं, वो अब फर्नीचर डिजाइन में भी आ गए हैं. काफी आप तो ऐड देखते होंगे कि टीवी से आते हैं वो ऐड. काफी हद तक है, और क्योंकि अब थोड़ा बहुत वो कंज्यूमर सेंस जो है काफी वो भी मतलब डेवलप हो रही है और काफी प्रोग्रेस कर रही है कि यूजेबिलिटी, एस्थेटिक्स, तो एक वो जो डिमांड है उसको एड्रेस करने के लिए आई थिंक डिजाइनर्स आर फाइंडिंग अ रोल एवरीवेयर नाउ. इनफैक्ट आप फर्नीचर को छोड़ के आप एरोस्पेस में जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक डिजाइनर चाहिए हु कैन पैकेज द इंजीनियरिंग पार्ट्स एंड अदर थिंग्स एंड मिक्स अप. टेक्सटाइल का एक एलिमेंट लगना है, एक मेटल का एलिमेंट, हाउ टू काइंड ऑफ फिट इट इन अ लिमिटेड स्पेस. आप मेडिकल इक्विपमेंट्स में जाएंगे, वहां पे भी आपको एक डिजाइनर चाहिए हु कैन काइंड ऑफ पुट द थिंग्स टुगेदर. तो एयरपोर्ट्स पे वो जो अंदर के हॉल्स होते हैं अगेन उनमें, जैसे बॉम्बे एयरपोर्ट पे यहाँ की पेपर मैशी का एक बहुत बड़ा काफी हद तक, हाँ यहाँ पे हमारे श्रीनगर एयरपोर्ट पे आप देखा बड़ा वो शिकारा का बोर्ड लगा. तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर पीपल डिजाइनर्स आर फाइंडिंग अ रोल. अच्छा, फैशन टेक्नोलॉजी का जो एक कैरियर है, इस मामले में मैं जानना चाहूँगा कि अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं. मतलब जैसे काफ़ी अभी कुछ कॉलर्स भी हमने आपसे पूछा कि इसके बारे में हमें बताइए, ये है क्या, हमारे बच्चे कैसा करेंगे, क्या करेंगे. देखिए अवेयरनेस के लिए आप क्या करते हैं? मंजूर साहब, ये एक ऐसा एरिया जिसमें पहले भी जब मैंने ज्वाइन किया तो आई कुड फाउंड दैट वी नीड टू रीच पीपल. ट्रू. स्पेशली जो कश्मीर की यहाँ सोसाइटी है. एक तो ये कि एक सेक्टर है, जैसे मैंने कहा टेक्सटाइल फैशन, इट हैज़ अ ह्यूज स्कोप एंड पोटेंशियल. एंड देन वी निफ्ट व्हाट वी डू. तो अगेन जितने भी मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया वी हैव बीन रेगुलरली यूजिंग. अगर आप हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल रेगुलरली वी पुट कंटेंट ऑन इट, वी अपडेट इट रेगुलरली. हमारी वेबसाइट, हमारा जो मैं कैंपस आपसे बात कर रहा था, बहुत ही शानदार कैंपस, ब्यूटीफुल है. तो अब वहाँ आने की जरूरत नहीं है आपको कैंपस देखना. वी हैव पुट अ वर्चुअल टूर ऑफ द कैंपस ऑन आवर वेबसाइट, श्रीनगर की वेबसाइट पे. नाज़रीन से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप देखना चाहेंगे कि हमारा कैंपस अंदर से कितना अच्छा है, कैसा ही दिखता है, क्या फैसिलिटीज़ है, आपके हमारे हॉस्टल के रूम कैसे हैं, मेस हॉल कैसा है, कैंटीन कैसा है, हमारे लैब्स और क्लासरूम्स कैसे हैं, तो वर्चुअल टूर जो है नहीं वो तो ठीक है, आपने सुपर क्लास किया होगा, हर चीज़ ग्रेट. मगर पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को ये इंटरेस्ट है कि कोर्स करने पर उनका फ्यूचर कैसा है, इज इट सेफ. जैसे हमारे इंजीनियर्स निकलते हैं अनएम्प्लॉयड काफ़ी बैठे हैं. जी बिल्कुल. बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करके हमारे BDS करके स्टूडेंट्स निकले हैं, जॉब नहीं है उनके पास. सही है. नहीं इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो ये है कि पर से कोर्स जैसे डेंटल है या इंजीनियरिंग, एक तो कमी ये हो सकती है कि वो जिन्होंने 4 साल 3 साल की डिग्री की है, क्या उनको वो राइट स्किल्स मिले, उसके बेसिस पे उनको जॉब मिलेगी या ना मिलेगी वो डिसाइड कर लेगा. उसमें आई थिंक निफ्ट हैज बीन एक्सीडिंगली वेल. अभी ग्लोबली निफ्ट इज कंसिडर्ड 11th इन द लीडिंग फैशन स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो वी आर अ ब्रांड इन इटसेल्फ निफ्ट, ऑल इंडिया लेवल, इंडिया डोमेस्टिक पे एज वेल एज ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. So there is a value to NIFT itself, जो ग्रेजुएट के एक वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू खुद का अपना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने क्या हम लोगों ने वी हैव बीन टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम. जैसे करिकुलम है, किसी ने कोई मार्केटिंग साइट शुरू कर दी है, जैसे अमेजॉन है या कुछ है, यहाँ आपके किसी स्टूडेंट ने इस तरह की कोशिश की है काफी सारी हमारे कश्मीर का जो प्रोडक्ट है, हाँ बिल्कुल, चाहे कश्मीर आर्ट में है, किसी दूसरी चीज, हाँ, या फ्रूट में है, किसी ने इस तरह का पोर्टल शुरू किया है, ऑनलाइन पोर्टल? हमारे ऑलरेडी कुछ पोर्टल्स है जिसमें जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, अमेजॉन एंड ऑल दैट, जो कश्मीरी बेसिक प्रोडक्ट्स है. सो आवर ग्रेजुएट्स आर स्ट्रेट अवे वर्किंग इन दैट. सो जैसे आपको एक कश्मीर बेस्ड कोई प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट का, इसका ऑनलाइन स्पेस क्रिएट करना है जी, इसका कैटलॉग बनाना है, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स एंड ऑल दैट, वो चीजें करनी. तो दैट्स व्हाई जैसे हनी है, आलमंड है, या आपका वूलन प्रोडक्ट है. बिल्कुल वूलन प्रोडक्ट है, काफी सारे प्रोडक्ट्स है. तो दे आर बीइंग रिक्रूटेड बाय ऑनलाइन जो रिटेलर्स हैं, they have been recruited by them also, they are already working there. तो उस स्पेस में भी हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं. ये आप उनको वहाँ बताते हैं कि कैसे ये ट्रेनिंग का पार्ट है? That is part of training. That is part of create. Exactly. हमारा एक कोर्स है फैशन कम्युनिकेशन जी. So these are people who only learn how do you communicate the product to the audience जी. आपके पास प्रोडक्ट बना है, इनका सिर्फ 4 साल का काम इतना है सीखना कि ये जो प्रोडक्ट है
اس کو آپ پبلک آڈینس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے، اگین تھرو کنونشنل موڈز، تھرو جو لیٹسٹ جو آن لائن موڈز ہیں اس کے تھرو، تو وہ ساری ایک باضابطہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس سے. سر آپ نے جب یہ NIFT شروع یہاں کیا، فیکلٹی آپ کو ساری یہی ملی یا کچھ باہر سے منگانی پڑی؟ نہیں، کافی ساری باہر سے، کافی ساری، آئی وڈ سے اراؤنڈ 80% آف دا فیکلٹی از فرام آؤٹ سائڈ. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ کشمیر سوسائٹی میں ابھی اس طرف زیادہ رجحان نہیں ہے. تو ہمارے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ماسٹرز آپ نے اس سیکٹر میں، حالانکہ کافی ڈفرینٹ ٹائپس آف ہمارے ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے. IT کے بھی لوگ ہمارے فیکلٹی میں ہیں، ہمارے فائن آرٹسٹ بھی ہیں، ہمارے فیشن ڈیزائنرز بھی ہمیں چاہیے، ہمیں ویب ڈیزائنرز چاہیے، ہمیں گرافک ڈیزائنرز چاہیے. اسٹوڈنٹس کو باہر کے اسٹیٹس پہ ٹور پہ لے جاتے ہیں یا کچھ جو نامی گرامی اس میں لوگ ہیں ان سے انٹریکشن کراتے ہیں؟ اٹ ہیپنز ریگولرلی. ہمارا جو 4 سال کا پروگرام ہے انڈسٹری کے ساتھ، کرافٹ کے ساتھ ریگولر ایکسچینج ہے. اور انڈسٹری کے ساتھ آپ کا کیسے کنیکٹ ہے؟ کافی اسٹرانگ ہے اینڈ دیر آر ڈفرینٹ ایلیمنٹس جس سے انشور ہوتا ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ بڑا ایک کلوز کنیکٹ ہو، ریگولر ایکسچینج ہو. اور اس میں یہ نہیں کہ ہمارے بچے انڈسٹری میں چلے جاتے، وی ریگولرلی ہیو پیپل فرام انڈسٹری ہو کم اینڈ ٹیچ آور اسٹوڈنٹس. اور وہ 1 یا 2 دن نہیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، وہ 15 دن 20 دن بیٹھیں گے، پورا ایک سبجیکٹ پڑھا کے جائیں گے. اور بیوٹی یہ ہے کہ 15 دن جب وہ پڑھائیں گے تو وہی اس کا ایگزام بھی لے لیں گے. اچھا. ایگزام کر کے وہ کمپلیٹ کورس کر کے ادھر پورا ختم کر کے جاتے ہیں. تو انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ریگولرلی جاتے ہیں. ہماری انٹرنشپس، گریجویشن پروجیکٹس، یہ سارے انڈسٹری کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارا انٹرنشپ کا پلیسمنٹ ہے، وی ہیو بین ورکنگ اگریسولی ٹو سی دیٹ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہو ہیو ٹو گو فار انٹرنشپ اچھی کمپنیز میں جائے. کافی کیمپس پلیسمنٹ سے جب آپ انڈسٹریز کے ساتھ اگر آپ کا اسٹرانگ کنیکٹ ہے، اس کا مطلب ہے ان کے ذریعے سے ایک کیمپس پلیسمنٹ ڈرائیو ہونا چاہیے. اور ہو بھی جاتا ہے، ریگولر فیچر ہے، ہر سال ہوتا ہے کیمپس پلیسمنٹ فار انٹرنشپ اینڈ کیمپس پلیسمنٹ فار اے جاب، دونوں چیزیں کیمپس سے ہوتی ہیں. سر گلوبل لیول پہ کیا اس کی اپرچونٹیز ہیں؟ گلوبل لیول پہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو گریجویٹس ہے، دے ہیو بین فائنڈنگ جابز اینڈ اسپیسز اکراس ورلڈ. تو ہائرنگ ریگولر لیول پہ باہر سے بھی، باہر کنٹریز میں ہمارے گریجویٹس چاہتے ہیں. انفیکٹ سری نگر کے بھی گریجویٹس، کیونکہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف یہاں لوکل بیس ٹریننگ نہیں دیتے. نہیں، اٹ از ناٹ. وی ٹرین دیم فار دا رول ٹو بی ٹیکن ناٹ ایٹ دا نیشنل لیول، ایٹ دا گلوبل لیول. وہ ایکسپوجر ان کو دیتے ہیں اور وہ ریگولرلی ہوتا ہے. ایک گلوبل لیول پہ جیسے آپ نے کہا، ہمارا 20 فارن فیشن سکولز کے ساتھ ٹائی اپ ہے. اچھا. MOUs ہیں جس میں اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہوتا ہے. اور ہمارے نیو سری نگر سے اسٹوڈنٹ ایک سیمسٹر کے لیے FIT فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نیو یارک چلے جاتے ہیں. اگر ہمارا 4 سال کا یہاں پروگرام ہے تو اس میں 6 مہینے 1 سال وہ فارن انسٹیٹیوشن میں جائے گا، 3 سال یہاں پڑھے گا، کمبائنڈ ڈگری ملے گی. اسی طرح سے سوئس ٹیکسٹائل کالج ایک لیڈنگ فیشن سکول ہے، ٹیکسٹائل کالج ہے. وہاں اس سال ہمارے 3 اسٹوڈنٹ گئے سمر ایکسچینج میں، اینڈ 1-1.5 مہینے کا ان کا وہاں پہ ٹریننگ تھا، ایکسپوجر وزٹ تھا، اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن تھا. تو یہ چیزیں ریگولرلی ہوتی ہیں اور ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم کے تھرو. جاوید صاحب اور بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک بار پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے زبانی کے اگلے ہفتے سے آپ کا نئے بیچ کے لیے ایڈمیشن شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے اگلے ہفتے وی وڈ بی اناؤنسنگ. ساری چیزیں ہماری ویب سائٹ جو ہے NIFT کی اس پہ اویلیبل ہے. وہی ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہی اینڈ پوائنٹ ان دا سینس ہے کہ بچے کو اپلیکیشن فارم بھرنا ہے. دھیرے دھیرے پھر آگے چیزیں اپڈیٹ ملتی رہیں گی. اور سری نگر کا کیمپس ہم چاہیں گے کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ کشمیر کے اسٹوڈنٹ، جموں کے اسٹوڈنٹ، لداخ کے اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کر پائیں یہاں پہ. یا ہم چاہتے ہیں کہ اگر کیمپس یہاں کے تو لوکل جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم جوائن کریں. اور جیسے میں نے کہا 35% ریزرویشن یہاں کے لوکل اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل اویلیبل. بہت شکریہ جاوید صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے اور اتنی ساری جانکاری ہمارے ناظرین کو آپ نے دی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.